Welcome back to our next video, basic concepts of macroeconomics. So this is the last question of this chapter, first chapter. And before moving towards the main answer, let me clear again that introduction, for if this question is asked for the long answer, so first of all you have to write the introduction, main introduction of the chapter, which is given in the first video of this chapter. Second, meaning you have to write of economics, which is again explained in the first video only. And then you have to write the definition of macroeconomics, which I am going to explain you now. And then you should start writing the main answer. So now, according to, as I told you again, that definition should be as it is. No changes should be made by yourself. So that's why I've written your definition. So according to Kenneth Boulding, macroeconomics deals not with individual quantities as such, but with the aggregates of these quantities. So macro मतलब क्या हो गया? ओवरऑल यूनिट, टोटल यूनिट बोल सकते हैं जिसे. सो वो इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ के साथ डील नहीं करेगा, मतलब सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर क्वांटिटीज़ नहीं देखेगा, बट इट विल ऑल्सो लुक टूवर्ड्स द एग्रीगेट्स ऑफ दिस क्वांटिटीज़. एग्रीगेट का मीनिंग है टोटल क्वांटिटीज़ की स्टडी होगी, एंड नॉट विद द इंडिविजुअल इनकम बट विद द नेशनल इनकम. सिर्फ इंडिविजुअल इनकम नहीं देखेगा कि पर्सनल इनकम, ये पर्सन की इनकम कितनी है, पर्सनल इनकम तक नहीं जाएगा सिर्फ, बट वो पूरी नेशनल इनकम मतलब पूरी इंडिया की इनकम कितनी है वो देखा जाएगा इधर. नॉट विद द इंडिविजुअल प्राइजेस बट विद द जनरल प्राइस लेवल. सिर्फ वो इंडिविजुअल प्राइस लेवल नहीं फाइंड आउट करेगा, बट वो पूरी ओवरऑल प्राइस लेवल फाइंड करेगा, जनरल प्राइस लेवल. नॉट विद द इंडिविजुअल आउटपुट बट विद द नेशनल आउटपुट. मतलब सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन कितनी आउटपुट दे रहा है दैट विल नॉट बी स्टडीड, बट इट विल ऑब्वियसली स्टडी अबाउट द नेशनल आउटपुट. मतलब पूरे इंडिया में कितना प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, दैट विल बी स्टडीड इन द concept of macroeconomics. So one example I will give you here regarding micro and macro. So just consider that overall if you are studying in a college, full institute is there. In that institute various departments are there. पूरा एक इंस्टीट्यूट ले लो, उसमें different departments are there. Just take an example, Sanjeevani group of institutes. So this is, in that various departments are there. MBA department, BBA departments, pharmacy is there, junior college, senior college, diploma is there, engineering is there. So various types of departments are there. So संजीवनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, ये पूरा इंस्टीट्यूट क्या हो गया, अगर इसकी स्टडी करने गए तो ये पूरा इंस्टीट्यूट है ना ओवरऑल. सो दैट विल बी अंडर द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, MA. अगर मैंने बोला कि नहीं मुझे सिर्फ एक जूनियर कॉलेज की स्टडी करनी है पूरे ओवरऑल इंस्टीट्यूट में से, एंड इफ आई जस्ट स्टडी अबाउट ओनली दैट सिंगल यूनिट दैट इज़ जूनियर कॉलेज, संजीवनी जूनियर कॉलेज, सो दैट विल बी द individual, that means it will be the study of MI, that is micro economics. So these are the examples. Now let us study about the basic concepts of macroeconomics. So these are only 6 bullet points of this question and our lesson will get over here. First is national income. नेशनल इनकम भी मैक्रो इकोनॉमिक में ही स्टडी की जाती है. दैट इज़ नेशनल इनकम मीन्स व्हाट इट इज़. नेशनल इनकम इज़ द इनकम ऑफ द होल नेशन, पूरे नेशन, पूरे इंडिया का जो इनकम है दैट इज़ द नेशनल इनकम. एंड हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड. सो विच एवर गुड्स एंड सर्विसेज दे फ्लो इन द कंट्री, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री में फ्लो होंगे दैट इज़ नोन एज द नेशनल इनकम. द गुड्स एंड सर्विसेज विच फ्लोज इन द country, whatever is produced, that is known as the national income, and that is also during the year, पूरे year में. Next is the savings. Saving means what it is now, that whichever person does the savings, अगर किसी ने इनकम अर्न की and from that income that person keeps aside little bit earnings. जैसे अगर किसी 1 लाख रुपीज़ अर्न किए, 1 लाख रुपीज़ में से अगर उसके 80,000 एक्सपेंडिचर हुआ एंड 20,000 उसकी अमाउंट अगर बच गई, सो दैट अमाउंट दैट पर्सन विल कीप इट एज द सेविंग्स इन द बैंक. दैट सेविंग्स कैन बी यूटिलाइज इन द फ्यूचर कंजम्पशन. फ्यूचर में अगर उसे लगा मुझे ये यूज़ करनी है या अमाउंट, या फिर मुझे उसे कन्वर्ट करना है दूसरे इसमें, दैट पर्सन कैन डू दैट. नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट्स. नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट. सो सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट वी कैन से इट इज़ लिटिल बिट इंटर रिलेटेड, मतलब उसके आगे का कंटिन्यू है वो पॉइंट. जैसे अगर पर्सन ने हर मंथ में 20,000 सेविंग्स किए एंड अगर उसे लगा कि अभी बहुत सारे सेविंग्स हो चुके हैं, दैट पर्सन में कन्वर्ट दो सेविंग्स इन टू द इन्वेस्टमेंट्स. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आफ्टर 10 years दैट पर्सन गेट्स 10 lakh rupees in his hand, so that 10 lakh rupees will be utilized
for the investment either in the factories, either in the gold, diamonds, or either in the share market. In anything that person can do the investments. In short, you can say that investment is the creation of capital assets. मतलब कैपिटल असेट्स क्रिएट होते हैं किस तरीके से, कैसे होंगे वो क्रिएट? बाय मोबिलाइजेशन ऑफ द सेविंग्स. मतलब सेविंग्स मोबिलाइज होगी, सेविंग्स का मूवमेंट होगा इनटू द इन्वेस्टमेंट एंड द इन्वेस्टमेंट्स विल बी क्रिएटेड. नेक्स्ट इज द ट्रेड साइकिल्स. सो ट्रेड साइकिल मतलब क्या होगा? बिजनेस साइकिल. मतलब जो बिजनेस है ना, नॉट नेसेसरी ना दैट ईच एंड एवरी बिजनेस विल डू द प्रॉफिट ओनली ईच एंड एवरी ईयर सिंस ईयर्स एंड ईयर्स. नो, it may happen no that some of the businessmen may face ups and downs in the business. होते हैं ना, ups and downs आते हैं हर बार business में. So those ups and downs are known as the trade cycles. In short, you can say fluctuations are there. बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मतलब फ्लक्चुएशंस आते हैं. बट फ्लक्चुएशंस, वाई डज द फ्लक्चुएशंस ऑकर? जस्ट ड्यू टू द इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन सिचुएशंस. मतलब इन्फ्लेशन होने की वजह से, डिप्रेशन होने की वजह से ट्रेड साइकिल्स ऑकर हो जाते हैं बिजनेस में. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन मीन्स दैट इज़ द प्राइजेज ऑफ द कमोडिटीज राइज कंटिन्यूसली एंड द परचेसिंग पावर ऑफ द पर्सन गोज ऑन डिक्रीजिंग. द प्राइस बढ़ती जाती है और प्राइस बढ़ने की वजह से क्या होता है कि इनकम उतनी नहीं होती है पर्सन के पास ताकि वो कमोडिटीज़ परचेस कर सके. एंड उसी की वजह से उसकी परचेसिंग जो पावर है वो कम हो जाती है, वो ख़रीदने की उसमें उतनी कैपेसिटी नहीं होती है कमोडिटीज़. नेक्स्ट इज़ डिप्रेशन. एंड अगर उसके पास उतनी, जस्ट टेक कि अगर उसके पास उतनी परचेसिंग पावर नहीं रही देन ही विल नॉट परचेस. एंड अगर उसे परचेस नहीं किया, दैट मीन्स डिमांड नहीं की, तो फिर कंपनीज जो भी रहेगी, प्रोडक्शन जो भी करेंगे, मैन्युफैक्चरर्स जो भी मैन्युफैक्चर करेंगे कमोडिटीज़, सो दे विल नॉट बी एबल टू मैन्युफैक्चर ऑन अ लार्ज स्केल because if people will only not purchase, to whom they will sell it. So that's why that is inflation. Next is depression situation. So depression means what it is, then at the time when the prices also fall and economic activities also gets slow down. मतलब economic जो activities है, production is there, distribution is there, exchange and consumption, as we have seen in our previous video, these are economic activities. So economic activities भी slow down हो जाएंगे. And on the other side we can say the prices also will fall. मतलब वो जब भी prices भी कम हो जाएंगी बट एक्टिविटीज़ भी कम हो जाएंगे बाकी के. नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ दैट मीन्स इट इज़ अ क्वांटिटेटिव कंसेप्ट. जैसे इकोनॉमी की ग्रोथ होने लगी तो उससे क्या होगा? द नेशनल इनकम विल इंक्रीज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ग्रोथ होती है ना कंट्री की, दैट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो एक क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है. क्वांटिटी बढ़ेगी उधर. आई विल गिव यू वन एग्जांपल आफ्टर कंप्लीटिंग 5th and 6th पॉइंट. 6th पॉइंट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ. ग्रोथ का मीनिंग है इट इज़ अ क्वालिटेटिव कंसेप्ट. दैट मीन्स द क्वालिटी विल इंक्रीज ऑफ द कमोडिटीज़ ईयर. क्वालिटी बढ़ती जाएगी ना जब कंट्री में, कोई भी ले लो, जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गए, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो गए, अगर इन सब की क्वालिटीज़ बढ़ती गई, सो दैट इज़ नोन एज द इकोनॉमिक growth of the country. For just by mistake I have written here growth, that is the development actually, that is the development of the country. So economic development you can say. Next one, economic growth and economic development. So one example I will give you so that you will understand it better. जैसे अभी see now every year admissions are taken in the colleges, in the schools. So let us take example of a college. So अगर कॉलेज में एडमिशन्स बढ़ते गए डे बाय डे स्ट्रेंथ बढ़ती गई, तो दैट विल बी नोन एज द इकोनॉमिक ग्रोथ बोलेंगे, क्योंकि वो क्वांटिटी बढ़ रही है उधर स्टूडेंट्स की. बट आफ्टर टेकिंग द एजुकेशन इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज, इफ़ द स्टूडेंट्स दे गेट द प्रॉपर रिप्लेसमेंट्स, अगर अच्छे से उनका कहीं पे रिप्लेसमेंट हो गया, किधर अच्छे से जॉब्स लग गए, प्लेसमेंट अच्छा हुआ, या फिर उनका किधर मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, एंड इफ़ दे गेट द एडमिशन इन फ्री ऑफ कॉस्ट और इवन इफ दे गेट द स्कॉलरशिप्स, सो देयर क्वालिटी इज इंक्रीजिंग ईयर ऑफ द स्टूडेंट. सो दैट विल बी अंडर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एंड ग्रोथ मीन्स व्हाट इट इज, क्वांटिटी इंक्रीज, डेवलपमेंट मीन्स क्वालिटी विल इंक्रीज. थैंक यू.